Good morning, everyone. Namaste, all of you. I hope you all had a wonderful weekend. So let's start our Monday with rest and digest. We'll wait for everyone to join in. So before we start rest and digest, I would suggest everyone to have a pillows with you. You can have this kind of bolster like this with you. If you don't have this kind of bolster, that's absolutely fine. You can bring a normal pillow with you. A normal pillow will also work. So today we're going to do a class which is completely about rest and digest, and we're going to do a few pranayama also to give our body complete healing. So everyone, let's sit comfortably. Now we will going to make a Gnana Mudra. So join your pointer and your thumb together. Place the palm on your knees and very slowly and gently close your eyes. Now start focusing at the tip of your nostril and observe your breathing. Now everyone start taking little deep inhalation. So what you will going to do is थोड़ा सा और deep में inhale कीजिए and deeply exhale करना है, but no jerks, no push. Now understand when you are inhaling how deep your inhalation is. This is very important to understand when you inhale how long your breath is. Now everyone focus between your eyebrows. जहाँ पे हमारा आज्ञा चक्र है, between your eyebrows, वहाँ पे focus करेंगे with the closed eyes. Bring your awareness between your eyebrows. And now everyone start breathing normally. जैसे हम रोज ब्रीथ करते हैं बस वैसे नॉर्मल ब्रीथिंग करना है. We will be chanting Om for 3 times. Take a deep breath. Om. Om. Om.
Now slowly and gently rub your palm. Place both your palm on your eyes and very slowly and gently open your eyes. So today the whole topic is about rest and digest, everyone. So we will start with lying down asanas, which are very, very helpful to rest and digest. And when we talk about rest and digest, तो क्या होता है जो हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होती है जब हम इस टाइप से रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाले जोन में रहते हैं एंड दिस नर्व इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर गट एंड ब्रेन connection. So everyone take a pillow or your bolster like this. Now place this below your knee and lie down. So what you can do, you can have your thighs and your knees like this on the bolster. Now slowly and gently lie down and now start relaxing your lower back. Now from here, bring your right foot towards you और राइट लेग को इस तरह से हक करना है आप सबको. तो जब हम राइट लेग को हक करें तो ज्यादा ओवर आपको पुश नहीं करना है या पुल नहीं करना है, जेंटल मूवमेंट रखना है, स्पाइन भी एकदम जेंटल है और ये मूवमेंट भी एकदम जेंटल रखना है आपको. अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमने राइट लेग को हक किया हुआ है तो राइट हाथ को इस तरह से साइड में जाने दीजिए शोल्डर लेवल में और लेफ्ट हाथ से राइट नी को आने दीजिए टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड. आपसे जितना हो उतना ही करना है, ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, ओवर पुश नहीं करना है. बी ऑन द ट्विस्टिंग जोन. इस ट्विस्ट को एंजॉय कीजिए. कम बैक इन द सेंटर एंड एक बार और राइट लेग को आपकी तरफ हक करिए. राइट नी को हक करना है एक बार और. अब हमें क्या करना है, जो हक हमने किया है राइट लेग को वो यहाँ से यानी आप पीछे के पैर के हिस्से से हक कर लीजिए और लेग को इस तरह से सीधा कर लीजिए. सीधा करने के बाद टोस को आपकी तरफ टर्न कर लीजिए. फोल्ड करके रखेंगे. नाउ धीरे से नी को बेंड करके लेग को स्ट्रेट कर देंगे. नाउ बेंड योर लेफ्ट नी एंड हग योर लेफ्ट लेग. जब आप हक कर रहे हो लेग को कंप्लीटली आप अपने आप को रेस्ट वाले जोन में रखिए जहां पे आपको काउंट की कोई ये नहीं है, ना ही आप ज्यादा पुल कर रहे हो, बस आप सिर्फ रिलैक्स कर रहे हो और रेस्ट कर रहे हो. अब यहाँ से हमें क्या करना है, हमने लेफ्ट लेग को हक किया है इसके लिए लेफ्ट हाथ को शोल्डर लेवल रख दीजिए एंड राइट हाथ से लेफ्ट नी को जाने देना है टूवर्ड्स द ऑपोजिट साइड यानी टूवर्ड्स द राइट साइड एंड स्टे.
नाउ कम बैक इन द सेंटर. एक बार और लेफ्ट लेग को वर्क करेंगे. अब हमें लेफ्ट लेग को भी इस तरह से अंदर से हक करना है और लेफ्ट लेग को धीरे से स्ट्रेट करते हुए टोस को आपकी तरफ पॉइंट करवा देना है एंड होल्ड करना है. अब धीरे से नी को बेंड करते हुए लेग को स्ट्रेट कर देना है इस तरह से. 20 सेकेंड्स के लिए बॉडी को रिलैक्स होने देंगे. Everyone have 5 deep breaths. अब हमें क्या करना है, दोनों फुट को इस तरह से बॉल्स्टर पे या फिर अगर आपने पिलो लिया है तो पिलो पे दोनों लेग्स को इस तरह से रख दीजिए. दोनों हाथों को साइड में करते हुए धीरे से हिप को उठाना है इस तरह से एंड होल्ड करना है. यहाँ पे होल्ड करेंगे अच्छे से. ये आपको ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा क्योंकि आपके पास लेंथ है. आपके दोनों पैर जो है वो पिलो पे है या बोल्स्टर पे है, तो इससे हमें थोड़ी सी लेंथ मिलती है टू लिफ्ट योर हिप अप. अब धीरे से आपको हिप को नीचे ले आना है. लोअर बैक को एकदम अच्छे से रेस्ट करने दीजिए फ्लोर पे. एक बार और करेंगे. इस बार हम क्या करेंगे, हिप को ऊपर जाने देने के बाद वी विल इंटरलॉक आवर फिंगर्स एंड वी विल स्ट्रेच आवर शोल्डर्स स्ट्रेट. सो इनहेल करना है आप सबको. एक्सेलिंग करते हुए लिफ्ट योर हिप अप एंड नाउ इंटरलॉक. आपके दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करके इस तरह से स्ट्रेच करना है एंड स्टे. नाउ स्लोली पहले अपने हाथों को रिलीज कीजिए और धीरे से लोअर बैक को फ्लोर पे आने देना है एंड रिलैक्स. You can again keep your knees on the bolster. अब हमें क्या करना है, दोनों लेग्स को फ्लोर पे रखना है. अगर आपको चाहिए तो आप जो बोल्स्टर है आपके पास उसको साइड में रख सकते हो थोड़े टाइम के लिए. वी विल नीड इट लेटर. अब हमें दोनों पैरों को बेड के एज पे रख देना है. नीज को अपार्ट करना है और दोनों आपके फीट को भी अपार्ट करना है. दोनों हाथों को ऐसे शोल्डर लेवल रखने के बाद दोनों नीज को लेट देम गो टूवर्ड्स द राइट साइड. तो इस तरह से राइट साइड जाने देना है एंड स्टे करना है. Now come back in the center and let's go towards your left side. तो दोनों नीज आपकी जाएंगे लेफ्ट की तरफ
और आपका नेक जो है वो मूव करेगा टुवर्ड्स योर राइट साइड। नाउ कम बैक इन द सेंटर। पैरों को ऐसे ही रखना है। राइट एंकल को उठा के इस तरह से लेफ्ट थाई पे रख दीजिए सब लोग। आपके लेफ्ट लेग के ऊपर ऐसे राइट को रख दीजिए और अब दोनों नीज को जाने दीजिए आपके राइट की तरफ। योर फेस विल गो टुवर्ड्स योर लेफ्ट। नाउ कम बैक इन द सेंटर एंड चेंज योर लेग। अब हमें लेफ्ट एंकल को उठा के रखना है राइट थाई पे और दोनों नीज जाएंगे टुवर्ड्स योर लेफ्ट साइड। नाउ कम बैक इन द सेंटर एंड रिलैक्स योर लेग्स, रिलैक्स योर सेल्फ। दोनों लेग्स को सीधा कर दीजिए और हाथों को भी रिलैक्स कर देना है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से दोनों पैरों को साथ में ले लेना है। दोनों हाथों को भी इस तरह से पीछे कर दीजिए साथ में। अब हमें पूरी बॉडी को ट्विस्ट करवाना है टुवर्ड्स द राइट साइड। तो देखिए कैसे करने वाले, इस तरह से देखिए दोनों हाथ आपके राइट की तरफ आए और दोनों लेग्स भी राइट की तरफ जितना आ सकते हो। लेकिन हमें ऐसे उठ के घूमना नहीं है, स्पाइन जो है वो फ्लोर पे ही है। सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर रहे हो, आपके हाथों को और पैरों को इस तरह से घुमा रहे हो, इस तरह से। एंड स्टे। नाउ कम बैक इन द सेंटर एंड चेंज। अब आप पूरा ट्विस्ट करोगे दूसरी साइड, पूरी बॉडी को इस तरह से घुमाओगे, लेकिन स्पाइन जो है वो फ्लोर पे ही है। सिर्फ हाथ और पैर जो है वो घूम रहे हैं आपके। तो जैसे ही हाथ और पैर घूमने लगते हैं, यू विल फील कंप्लीटली वन साइड स्ट्रेच। अगर आप राइट की तरफ जा रहे हो तो लेफ्ट साइड पूरा स्ट्रेच होगा, और अगर आप लेफ्ट की साइड जा रहे हो तो राइट में आपको पूरा स्ट्रेच फील होगा। Now come back in the center and relax. अब दोनों हाथों को आपको क्या करना है, इस तरह से शोल्डर लेवल रखना है। दोनों नीज को बेंड कर देना है। मैं आपको पहले लेफ्ट की तरफ बता रही हूँ ताकि आप देख सको। राइट की तरफ इफ आई विल डू, आप शायद नहीं देख पाओगे, इसके लिए आई एम डूइंग इट ऑन द लेफ्ट साइड फर्स्ट। दोनों नीज को लेफ्ट की तरफ ले आइए इस तरह से एंड स्टे देयर। स्टे करना है अच्छे से।
नाउ कम बैक इन द सेंटर। अब दोनों नीज को ले जाना है आपके राइट की तरफ। तो दोनों नीज को ले जाएंगे हम हमारे राइट की तरफ। नाउ कम बैक इन द सेंटर। एक बार और दोनों लेग्स को, दोनों नीज को आने देना है आपके लेफ्ट की तरफ। अब देखिए जब लेफ्ट की तरफ आ गए तो दोनों पैरों को इस तरह से सीधा कर दीजिए। परफेक्ट। एंड स्टे। These all are very, very good for your spinal movement. Those who are facing with the lower back pain, those who are facing the PCOD also. These movements are very, very good for them. Now धीरे से दोनों नीज को पहले आप बेंड कीजिए, सेंटर में आना है और फिर अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द राइट साइड। सो दोनों नीज हमारे राइट की तरफ जाके फिर हमें उन्हें क्या कर देना है, स्ट्रेट कर देना है। दोनों नीज को आपको स्ट्रेट कर देना है टुवर्ड्स द राइट साइड। नाउ धीरे से कम बैक इन द सेंटर एंड दोनों हाथों से नीज को हक कर दीजिए अपने। एंड रिलैक्स योरसेल्फ। नाउ टर्न योर बॉडी टुवर्ड्स वन साइड लाइक दिस। और उसके बाद हमें टर्न करना है ऑन आवर स्टमक। बट हम स्टमक पे टर्न करेंगे उसके पहले वी विल नीड अ बोल्स्टर अगेन लाइक दिस। सो या फिर आप जो पिलो ले रहे हो उसको आप इस तरह से रख दीजिए। और अब हमें क्या करना है, इस तरह से लाई डाउन करना है। सो मेरा जो स्टमक है वो रेस्ट कर रहा है मेरे पिलो पे। ठीक है। और यहाँ से मैं जाऊंगी जेंटल भुजंगासन के लिए। सो इसमें क्या हो रहा है, मेरे हाथ बहुत रिलैक्स्ड है, मुझे एक अच्छा सा सपोर्ट मिल रहा है पिलो का। सो आई एम गोइंग टू डू दिस वे भुजंगासना टू जस्ट हैव अ गुड release to my lower back and strengthen my abdominal muscles. So stay here everyone. रिलैक्स करेंगे यहाँ पे भुजंगासन के लिए। अब हमें क्या करना है, वी विल गो फॉर धनुरासन। सो दोनों नीज को इस तरह से बेंड कर दीजिए, होल्ड कीजिए एंड बस स्टे करना है और कुछ भी नहीं करना है। ऑलरेडी आपके चेस्ट अगर आप देखोगे तो ओपन है बिकॉज ऑफ द पिलो। बस इस तरह से होल्ड कर दीजिए। इट्स अ रेस्टोरेटिव योगा, सो हमें ज्यादा पुश पुल नहीं करना है। जो हमारी कैपेसिटी है बस उस हिसाब से ही करना है। रिलैक्स एंड रिलीज। यहाँ से ही दोनों नीज को बेंड करते हुए वी विल रेस्ट इन अ चाइल्ड पोज। तो धीरे से चाइल्ड पोज में रेस्ट करना है और दोनों हाथों को इस तरह से बोल्स्टर पे या पिलो पे रख दीजिए एंड रेस्ट।
Now from here everyone come up like a cat and cow position और यहाँ पे बोल्स्टर पे या पिलो पे हाथ रखते हुए धीरे से इस तरह से स्पाइन को अंदर पुश कीजिए एंड लुक अप। अब धीरे से बैक को राउंड करते हुए लुक इन। वन मोर टाइम, arching your back, exhaling round your back, inhaling, arching your back. अब हमें क्या करना है, इसी तरह से रुकना है दोनों हाथों को। तो बोल्स्टर को थोड़ा पीछे अगर चाहिए तो ले सकते हैं। दोनों हाथों को इस तरह से आगे जेंटली देना है एंड आपके हेड को इस तरह से ले जाना है बोल्स्टर पे। आप चिन भी ले जा सकते हो या हेड भी ले जा सकते हो एंड स्टे हियर। यहाँ पे हमें स्टे करना है। होल्ड करेंगे यहाँ पे। And slowly come back up and relax. Now you can keep your bolster by your side. अभी हमें नीड नहीं है, we will need it later on. अब हमें क्या करना है, इस तरह से एक साइड में आप सो जाइए ऐसे, ठीक है। हाथ के ऊपर हाथ रखना है। सपोज अब मैं सोई हूँ मेरे लेफ्ट की तरफ, तो मेरे लेफ्ट हैंड पे मेरा राइट हैंड है, मेरे लेफ्ट नी पे मेरा राइट नी है। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, सिर्फ राइट हाथ को ऊपर उठाइए और राइट हाथ को जाने दीजिए ऑपोजिट की तरफ ऐसे। That's it and stay. So जितना ट्विस्ट हो रहा है ट्विस्ट होने दीजिए। नी के ऊपर नी रहेगा, लेफ्ट हाथ जो है जहां है वही रहेगा, सिर्फ जो राइट हाथ है हमारा दैट विल गो टुवर्ड्स द राइट साइड। एक बार और देख लीजिए सब लोग। हमें हाथ के ऊपर हाथ रखना है और धीरे से इस तरह से जाने देना है राइट हाथ को राइट की तरफ एंड स्टे। Now come back in the center and let's change the side. Now हमें बॉडी को टर्न करना है टुवर्ड्स द राइट साइड। तो राइट हाथ पे लेफ्ट हाथ रहेगा, राइट नी पे लेफ्ट नी रहेगा और अब यहाँ से हमें क्या करना है, लेफ्ट हाथ को आने देना है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड लाइक दिस एंड स्टे। So this is a very nice way of a twisting. और आप यहाँ पे कंफर्टेबल भी हो और ट्विस्ट भी कर रहे हो। सो यू आर गेटिंग टू बेनिफिट्स फ्रॉम दिस सुप्त वक्रासना। नाउ कम बैक इन द सेंटर। धीरे से सेंटर में आ जाइए एंड विद द सपोर्ट ऑफ योर पाम सिट इन अ क्रॉस लेग्स। धीरे से क्रॉस लेग्स में हमें बैठ जाना है। अब हम थोड़ा सा स्पाइनल मूवमेंट और करेंगे टू रिलीज योर स्पाइन। सो अब यहाँ से हमें क्या करना है, हमारे लेफ्ट हाथ को सेंटर में रख दीजिए और राइट हाथ जो है वो इस तरह से पीछे जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको हाइट चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, बोल्स्टर को पीछे रख के भी ट्विस्ट कर सकते हो इस तरह से। बट अगर लग रहा है कि नहीं मेरा हाथ जा रहा है पीछे, सो जस्ट गो एंड ट्विस्ट योर बॉडी टुवर्ड्स द राइट साइड। अब जब आपने ट्विस्ट कर लिया है बॉडी को राइट साइड, तो धीरे से अपनी आंखों को बंद कीजिए। क्लोज योर आईज एवरीवन।
and enjoy this stretch. Keep yourself completely calm and relaxed. Now come back in the center. Let's change our hand. अब हमें राइट को सेंटर में रखना है, लेफ्ट को पीछे रखते हुए बॉडी को ट्विस्ट करना है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। एक बार जब आप ट्विस्टिंग कंप्लीट कर देते हो, उसके बाद slowly and gently close your eyes. After closing your eyes, start observing your breath. Start observing the stretch. Now come back in the center. Now आपके राइट हाथ को रखना है आपको राइट की तरफ और लेफ्ट हाथ को धीरे से स्ट्रेच करना है। जेंटल स्ट्रेच देंगे, ज्यादा आपको पुश पुल नहीं करना है। अगेन एंड अगेन आई विल से दिस। आफ्टर गोइंग हियर, क्लोज योर आईज एंड स्ट्रेच को ऑब्जर्व कीजिए एंड एंजॉय कीजिए। Now come back in the center and let's change your side. Come back in the center and relax yourself. Now we're going to go for the Baddha Konasana, that is called a butterfly pose. तो उसके लिए we will need a bolster. Bolster को आप इस तरह से प्लेस करवा दीजिए आपके स्पाइन की लाइन में। यहाँ से हम आ जाएंगे बद्ध कोणासना की पोजीशन में। ठीक है, अब धीरे धीरे आप अगर पिलो है तो पिलो को ऐसे सपोर्ट लीजिए, डायरेक्टली नीचे मत जाइए, घाई नहीं करना है। इस तरह से सपोर्ट लेते हुए फिर धीरे से स्पाइन को जाने दीजिए एंड स्टे। सो एवरीवन, जब भी हमें नीचे जाना है हमें घाई नहीं करना है, धीरे से पिलो का सपोर्ट लीजिए। कितनी बार क्या होता है हम ऐसे ही नीचे जाने लगते हैं एंड वी कैन हैव एनी काइंड ऑफ इंजरी रिलेटेड टू द स्पाइन। सो ऑलवेज होल्ड द पिलो या होल्ड द बोल्स्टर, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, वन वर्टेब्रे बाय अनदर वर्टेब्रे, धीरे धीरे हमें इस तरह से नीचे जाना है। एंड नाउ लेट योर हार्ट फील द ओपनिंग इन द बद्ध कोणासना। And now just stay here. If you feel कि थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है तो आप आपके पिलो का थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। जैसे मैंने अभी किया, मुझे थोड़ा सा लोअर बैक में आई मीन डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था, so I have adjusted my bolster. So even you all can do that on your own. Now here, stay here for a minute. आप आपके हाथों को कहीं पे भी रख सकते हो, सीधा रख सकते हो, पीछे रख सकते हो, साइडवेज रख सकते हो, जहां पे भी आपको कंफर्टेबल हो। यू कैन प्लेस योर पाम्स बट योर स्पाइन शुड बी इंक्लाइंड।
नाउ फ्रॉम हियर एवरीवन, दोनों एल्बो का सपोर्ट लेके धीरे से हमें ऊपर आना है एंड सिट एंड रिलैक्स योरसेल्फ। नाउ इस तरह से बोल्स्टर को थोड़ा सा टर्न कर लीजिए सेंटर में। अब हमें इस तरह से बैठना है लेग्स को फोल्ड करते हुए, ठीक है। मेरे दोनों लेग्स फोल्ड है, मेरा पिलो जो है वो पीछे है, और अब मैं धीरे से जो है वो इस तरह से लाई डाउन करने वाली। बट अब क्या हो रहा है, जैसे मैं लाई डाउन करने जा रही हूँ, पीछे मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा नेक बहुत ज्यादा हैंग होने वाला है। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ब्रिंग अनदर पिलो, ठीक है। आप अनदर पिलो लेके आ सकते हो, उसे आपके नेक के नीचे प्लेस करवा दीजिए एंड देन इस तरह से आप सो सकते हो अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है तो। बट अगर आपको लग रहा है कि ये टू मच हो रहा है तो आप पिलो की लेंथ बढ़ा दीजिए एंड स्टे देयर। हम ऐसे भी रुक सकते हैं। नाउ कम बैक स्लोली, हमें ऊपर आना है, धीरे से सपोर्ट लेके ऊपर आना है एंड सिट। नाउ एवरीवन, लास्ट हम करेंगे सवासना। उसके पहले वी विल डू मतलब आई विल एक्सप्लेन यू कि ये जो बोल्स्टर है उससे क्या हो रहा है, हमारी बॉडी थोड़ी सी इंक्लाइन हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, तो उसकी वजह से एक स्पाइन जो है हमारी जो स्ट्रेट रहती है उसकी मूवमेंट में बहुत अच्छी हेल्प हो जाती है। तो कितनी बार ऐसे होता है कि हमें लेंथ नहीं महसूस होती है, हम स्पाइन से ज्यादा मूव नहीं कर पाते हैं। So when you use this kind of props, they help you to become more and more comfortable in that asana. So now the next asana is on the wall, जो है विपरीत करनी, which is the most important asana for whenever you want to activate your parasympathetic nervous system. So that is called your rest and digest. उसके लिए हमें क्या करना है, पिलो को आप पहले ही प्लेस कर दीजिए इस तरह से वॉल के पास, और अब इस पिलो पे आपको आपके हिप्स को रखना है। तो हम कैसे करेंगे आप देख लीजिए एक बार अच्छे से। आप ऐसे पिलो पे बैठ जाइए अगर आपको बैठना है तो। अब उसके बाद हाथों का सपोर्ट लीजिए एंड बॉडी को टर्न कीजिए। बट अगर आपको लग रहा है कि ये डिफिकल्ट लग रहा है तो आप ऐसे बैठिए। अब यहाँ से इस तरह से सपोर्ट कीजिए हाथ का, पैरों को रखिए, धीरे से हिप को उठा के प्लेस कीजिए ऑन द बोल्स्टर। अब बोल्स्टर पे आपने हिप को रख दिया है, आपके हिप जो है, स्पाइन जो है, उनको एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है एंड स्टे। सो हम ऐसे भी कर सकते हैं एंड रिलैक्स। सो हमारे स्पाइन को और हिप को आप देखोगे तो एक अच्छा सा सपोर्ट मिल रहा है बिकॉज ऑफ द बोल्स्टर, and you can adjust the pillow according to yourself and you can stay here in a Viprit Karni. I hope you all are comfortable in the Viprit Karni. But अगर आपको लग रहा है कि ये डिफिकल्ट हो रहा है तो सिर्फ आप लेग्स कर दीजिए ऑन द वॉल, दैट इज ऑल्सो फाइन। And now many of you who can't sit in a malasana, हम में से बहुत सारे हैं जो मालासना में नहीं बैठ पाते हैं बिकॉज ऑफ द एज और बिकॉज ऑफ द हेल्थ इश्यूज और समथिंग। हम मालासना यहाँ पे भी कर सकते हैं विद द सपोर्ट ऑफ द वॉल एंड विद द सपोर्ट ऑफ द बोल्स्टर। क्या करना है,
बस कुछ नहीं, दोनों आपको नीज को इस तरह से बेंड करके मालासन की पोजीशन में आ जाना है, स्पाइन को स्ट्रेट रखना है। सो दिस इज योर मालासन। अगर आप नोट करोगे तो जब आप सिटिंग में होते हो एग्जैक्टली यही पोस्चर में आप होते हो, और लाइंग डाउन विद द बॉल इज आल्सो द सेम थिंग। और अब यहाँ पे भी आप मालासन कर सकते हो कंफर्टेबली। दोनों नीज को बेंड कर दीजिए, पिलो का सपोर्ट लीजिए हिप के लिए। So this is your malasana with the support of bolster and with the support of the wall. अब धीरे से आपको आपकी बॉडी को टर्न करना है टूवर्ड्स वन साइड एंड सिट। अब हम धीरे से बैठ जाएंगे फॉर द प्राणायाम। सो दोज हु वांट्स टू ट्राई विद द बोल्स्टर व्हाट दे कैन डू, पिलो को इस तरह से पीछे रख लीजिए आपके, ठीक है, कंफर्टेबल होके बैठ जाइए। सो क्या हो रहा है, मेरी स्पाइन जो है वो लॉन्ग है बट मेरे हिप को एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है पिलो की वजह से। सो ऐसे बैठने के बाद यू ऑल कैन क्लोज योर आईज इफ यू फील सो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे आईज क्लोज करके नहीं करना है, यू ऑल कैन सी एंड डू द प्राणायाम। So I'll come forward to show you all, but those who wants to take a rest with the support of the wall, they can do that. And now let's sit comfortably for the pranayama. Now दोनों हाथों को इस तरह से नीज पे रखते हुए आईज को क्लोज करना है धीरे से। And the first pranayama for today is yogic breathing. So what yogic breathing does? Yogic breathing से क्या होता है, जितना हम ले रहे हैं यूनिवर्स से या जितना हम ले रहे हैं इस सृष्टि से उतना हम डबल दे रहे हैं। तो हम इनहेल कर रहे हैं सपोज 3 काउंट्स, तो उसकी जगह हम 6 काउंट्स एक्सेल कर रहे हैं। सो जो हम ले रहे हैं उसका डबल हम दे रहे हैं। तो योगिक ब्रीदिंग क्यों बोलते हैं, जो योगीज थे ऋषिज थे दे यूज्ड टू डू अ ब्रेथ लाइक दिस। वो इतना सा ले रहे थे सृष्टि से नेचर से और डबल लेके जा रहे थे। सो इवन वी आर ट्राइंग टू डू द योगिक ब्रीदिंग, हाउ मच वी आर टेकिंग, वी आर ट्राइंग टू गिव इट बैक डबल। सो एवरीवन क्लोज योर आईज कंफर्टेबली। और इसमें सबका अलग अलग होगा, कोई 2 काउंट इनहेल कर सकता है, कोई 4 काउंट इनहेल कर सकता है, बट आप जितना भी इनहेल कर रहे हो उसका डबल एक्सहेल करना है। सो लेट्स क्लोज योर आईज एवरीवन and start with your yogic breathing, inhaling and exhaling. Inhale and exhale. Inhale exhale. Make sure जितना हम inhale कर रहे हैं उसका डबल हम exhale करें। Your exhalation should be very, very gentle and very, very deep and smooth. It's the beautiful practice of improving your lungs capacity.
Now, everyone, start breathing normally after you complete your exhalation. Now, we're going to go towards the Brahmari Pranayama, which is very, very helpful to improve your concentration, to not only improve your concentration, it helps you to have your connection with the gut and brain also. So let's everyone close your ears with your thumb. उसके बाद हमें क्या करना है, इनहेल करना है एंड एक्सेल करते हुए हमिंग साउंड करना है. तो पहले तो हम डीप इनहेलेशन करेंगे और एक्सेल करने के टाइम हम हमिंग साउंड बनाएंगे. So let's start everyone. Take a deep inhalation. Now feel the vibrations all around your Agna chakra, your Sahasrara chakra. At the same time, you will going to feel a deep calmness within you. Now, everyone, we will move forward towards the abdominal breathing. So, place your right palm on your stomach and let's have the abdominal breathing. इनहेल करना है, स्टमक को ब्लो आउट करना है. एक्सेल करते हुए लेट योर स्टमक मूव इन, लेट योर नेवल मूव टुवर्ड्स योर स्पाइन. So fill your stomach, everyone, and empty your stomach. See how beautiful your stomach is filling with air and how beautifully you are emptying your stomach.
Now, after exhalation, if you want, you can take a break, or if you are comfortable, let's continue for some more breaths, abdominal breathing. Those who feel little tired, they can take a break. Those who feel they can continue, you all can continue. Now, after exhalation, place your palm back on your knees. Now, everyone, before we end the session, let's have some kind of manifestation. Place both your palm on your chest. Now, let's have this manifestation with you. You can repeat after me. Once I say, you all can say it. I am healthy. I am wealthy. I am happy. I am blessed. I am protected. I love myself the way I am. And I love and accept others the way we are. Let's repeat one more time, everyone. I am healthy. I am wealthy. I am happy. I am blessed. I am protected. I love the way I am. And I love others the way they are. Now start rubbing your palm. Place both your palm on your eyes. Very slowly and gently open your eyes with new opportunities, with new beginnings. Thank you so much, everyone, for joining this session. I will see you each and everyone on Wednesday, and I hope this rest and digest system helps you to activate your parasympathetic nervous system, which is your whole main thing for your gut-brain connection. Thank you so much, everyone. Once again, thank you.